Hello, my dear students. Thank you for joining. We'll get started in few seconds now. Good evening, Priyanshu, Shivam. Shivam, I will answer your question in few seconds. Good question out there. Um, so welcome, AP, Arav, Khyati, Shivam, Priyanshu, everybody who's watching here. Congratulations for being part of Accelerated Math. है ना? So let's go back a little here. And let me first bring in the writing pad. And if you're not part of this awesome channel, please be part of it right now. Show the toolbar and then bring it here. Close this slideshow. Okay. So students, if you're not part of the awesome channel here, please be part of it. You get a lot of information there. भाई आप आ जाइए इधर. हाँ जी. So thank you for being part of this. Asim, hello, Shashwat. So Shivam is asking, can I watch NSCP boot camp if I do not have prior knowledge of like look those topics? Yeah, definitely better. The purpose of this boot camp is to start from the basics, and that's what exactly what we are doing. So NSCP boot camp we are starting from very basics. We are not assuming that there is any prior knowledge. There is one prerequisite that I always say कि भाई जोश पूरा होना चाहिए. अगर आप में जोश है, you are welcome. अगर जोश नहीं है, तो you are wasting your time. That's the only thing. सिर्फ जोश काफी है, जोश रिक्वायर्ड है, जोश के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए. नाइन्थ में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, नाइन्थ में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है. यस, है ना? सो we'll start from the basics of coordinate geometry here. So वेलकम, है ना? बोर्ड फोड़ने का इरादा कितना पक्का है? Let me know in the chat box here right now. And the students who are watching the recording, you have to let me know in the comment box कितना पक्का इरादा है. 10th का जो बोर्ड आने वाला है उसमें क्या क्या सोचा है, कितने परसेंटेज सोचे हैं? प्रियांशु, आसिम, शाश्वत, मैथ्स की बात हो रही है, शिवम, कितने मार्क्स से फोड़ना है बोर्ड का एग्जाम? लेट मी नो. एंड इफ यू आर वाचिंग द रिकॉर्डिंग, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कितना सोचा है. गुड इवनिंग रुद्रांश, ऑलवेज देयर. So my name is Bhavdeep Sethi and I basically have done masters from IIT Bombay, but my passion is physics haters to physics lovers. And currently, I am doing the same thing for maths. So I'm trying to convert all the math haters to math lovers. है ना? सर मैं तो फोड़ दूंगा बोर्ड रुदान से, शाश्वत 100%. सर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़नी चाहिए? अरे भाई मार्क्स के लिए पढ़नी चाहिए. क्या ये सच बोला मैंने? नहीं, मार्क्स के लिए नहीं पढ़नी चाहिए. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज पार्ट ऑफ एनीथिंग दैट यू डू इन द साइंटिफिक वर्ल्ड. फिजिक्स में आप देखिए हर जगह जो आप ग्राफ्स बनाते हो, केमिस्ट्री में जो आप यूज करते हो, सारा कुछ है ना, इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑफ ग्राफ्स. 100 out of 100 आर वनिका. सर बोर्ड्स क्या दो होंगे ख्याति, अभी किसी को पता नहीं, बोल तो रहे हैं. प्रियांशु से मैं तो 9th में हूं, बट जब 10th में आ जाऊंगा 101% मार्क्स लाऊंगा. क्या बोर्ड दो होंगे अभी नहीं पता. आपको ये पता है कि बोर्ड एक हो, दो हो, चाहे अनेक हो, आप उसको फोड़ कर जाओगे, है ना? सो आई कन्वर्ट फिजिक्स हेटर्स टू फिजिक्स लवर्स. लेकिन अब मैं थोड़ा सा मैथ्स की तरफ भी फोकस कर रहा हूँ. मैथ हेटर्स टू मैथ लवर्स. और अगर फिजिक्स को रट्टा मारोगे, फिजिक्स बुरा मान जाएगी. Now today we are going to start and finish coordinate geometry of 10th grade. So why to accelerate maths? And that's the very first question. Why do we accelerate math? So for the very basic reason कि भाई things are easier with Olympiads, JEE, NEET if you have mastered the NCERT chapter. चाहे आप NEET की तैयारी कर रहे हो, JEE की कर रहे हो, Olympiad की कर रहे हो, अगर आपने NCERT का chapter master कर लिया, things are very easy. Now the problem is the schools are going to take their sweet time. They have their own schedule prescribed by the board. और वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं. मैं हर सेशन में ये बात बोलता हूँ, स्कूल गलत नहीं कर रहे हैं, उनको ब्लेम करने की जरूरत नहीं है. उनका अलग पर्पस है पढ़ाने का, हमारा अलग पर्पस है पढ़ने का. हमारा यहाँ पर पर्पस है ओलंपियाड फोड़ना, JEE फोड़ना, नीट फोड़ना. तो हम उस पर्पस के हिसाब से एक्सिलरेट कर रहे हैं. स्कूल अपनी तरफ से ठीक है, हम अपनी तरफ से ठीक है, तो किसी को दोष नहीं देंगे यहाँ पर. Now schools will take months and months, and that is why the VOS, Vedantu Olympiad School, took the initiative to accelerate math. So in a nutshell, we are doing one chapter in one Y-tube session. 13 chapters या 14 जितने भी है, 13-14 सेशंस में, 13-14 डेज में
फ्री फॉर ऑल, नो कैच, नो हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस, क्योंकि कई बार यूट्यूब वीडियोस में आपने देखा होगा बड़े जोश के साथ पढ़ा देते हैं, है ना, इतना सा, फिर कहते हैं अरे ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना, उस पिक्चर के टिकट को ले लो और फिर आ जाओ। तो दैट देयर इज नथिंग लाइक दैट, इट्स ऑल फ्री फॉर एवरीबॉडी। थ्योरी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, पीवाईक्यूज, आई हैव नॉट बीइंग गिवन द होमवर्क, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। फॉर पास्ट 2 सेशंस मैंने होमवर्क नहीं दिया, गलती मेरी है। इस बार से आपको होमवर्क मिलेगा, है ना, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। सो द कोर्स विल नेवर स्पून फीड यू, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट कि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है वो पूरी मैं सारे सॉल्यूशंस करूंगा उसके। आई विल डू सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड एनकरेज यू टू डू ऑल द अदर क्वेश्चंस, and there is not going to be any repeat of the questions. We are going to cover the basic concepts. Those concepts are going to make sure that 100% syllabus is covered. प्रैक्टिस आपकी है, भागना मैं सिखाऊंगा, प्रैक्टिस आपने करनी है, साइकिल चलाना मैं सिखाऊंगा, रेस में जीतना है तो साइकिल की प्रैक्टिस आपने करनी है। So before I start the session, I always encourage everybody to take this pledge. I will not memorize physics and maths. If you cannot take this pledge, you are in the wrong class, because यहाँ पर आप बोर हो जाओगे। I am not being rude here. I am being very practical, very honest here. अगर आपको इस pledge को लेने में मुश्किल होती है तो आपको आज की क्लास में नींद आएगी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। और अगर आपने ये प्लेज ले ली कि आपने तो बिल्कुल कंसेप्चुअली पढ़ना है, तो बस आपकी बल्ले बल्ले है, यू आर, है ना, ऑलवेज ऑलवेज गोइंग टू एंजॉय द क्लासेस हियर। ये सारा होमवर्क एक साथ करेंगे, क्या बात है। रुद्रांश सेज आई प्लेज, प्रियांशु सेज आई प्लेज, आरव ने भी शपथ ले ली है, शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। So everybody take this pledge. I'm again repeating, if you are not able to take this pledge, आज की क्लास में आपको नींद आएगी। मैं कोई रूड नहीं हूं, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूं कि आप चले जाओ, छोड़ के चले जाओ। मैं तो कह रहा हूं आप यहाँ पर रहो मेरे साथ, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आप ये प्लेज नहीं ले सकते हो, अगर आपको तकलीफ हो रही है, तो आपको क्लास अटेंड करने में उससे ज्यादा तकलीफ होने वाली है। शिवम, प्रियांशु, अनिका, शाश्वत, रुद्रांश, आरव, है ना, with full josh, let us get started with the class here. So 7.1, which is the basics, आपकी जो बुक है उसमें 7.1 is all about the basics. So let's start with the basics. कुछ स्टूडेंट्स क्लास में नहीं आए हैं, वो मुझे याद कर रहे हैं। तो लेट्स गो फॉर द बेसिक्स। व्हाट आर द बेसिक्स? बेसिक्स आर बेसिकली, what is this? This is a graph that you have studied from your childhood, चौथी पांचवी में पढ़ा होगा। So we are just going to recap that. So basically on a graph paper you have x axis, so white कैसे बना दिया भाई? So on the graph paper, there is something called x-axis, and for the students who have been studying with me long time, तो उनको पता है भाई ये convention होता है ना? There are things which are conventions and things that are rules. So this is not a rule. This is not a law of nature. ऊपर वाले ने नहीं कहा कि आप इसको x मानो, इसको इसको y मानो. This is all a convention. लोग बैठे, उन्होंने बोला इसको x बोलूंगा, इसको y बोलूंगा, एग्री, हाथ उठाओ, सबने उठा दिया, बात खत्म। So from that day everybody is calling this x and this is y. Now you cannot break the laws of the nature, you should not be breaking those, you should not even try to, and you cannot, but you can definitely break the conventions. इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर इसको y बोलोगे, इसको x बोलोगे, इसको p बोलोगे, इसको q बोलोगे, अरे नाम है इसको एप्पल बोलो, इसको ऑरेंज बोलो, डजंट रियली मैटर। मैं बोलूं ये एप्पल एक्सेस है, ये ऑरेंज एक्सेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इफ यू कॉल दिस y एंड यू कॉल दिस x, आंसर ठीक आएगा। किसी को आप सोल्यूशन दोगे वो सिर पीट लेगा। आपने बोला इसको ऑरेंज बोलूंगा या एप्पल बोलूंगा, इसको नारंगी बोलूंगा, आपका आंसर ठीक आएगा। लेकिन जिस जिसके साथ आप शेयर करोगे आंसर, वो सिर पीट लेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम, कि अगर आप कन्वेंशंस ब्रेक करते हो, दैट सोल्यूशन कैन नॉट बी शेयर्ड विद अदर्स। दैट्स द पॉइंट, दैट इज द ओनली पर्पस दैट वी स्टिक टू द कन्वेंशन फॉर सिंप्लिसिटी and for easy understanding for everybody. So you have to remember, convention break कर सकते हैं, बिल्कुल आपके पास power है, but do not break them. So this is called the x-axis and this is called the y-axis. And again, by convention, on the right hand side are the positive numbers. So this is 1 unit, 2 units. So this is 2, this is 3, this is 4, and then on the left hand side is -1, -2, and so forth. So this direction is going to be negative and this direction is going to be positive. And again, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे जाएंगे नेगेटिव होगा। ये एक कन्वेंशन है,
इसको जब चाहे आप ब्रेक कर सकते हो, लेकिन आप ब्रेक करोगे अपने रिस्क पर, दैट एवरीबडी इज गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड. सो फॉलोइंग द कन्वेंशन, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव एक्स. अब किसी चीज का कोऑर्डिनेट देखना है, कन्वेंशन इज टू राइट द एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट. मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि ये कन्वेंशन की बात हो रही है, इसमें कहीं पर भगवान ने नहीं कहा, ऊपर वाले ने नहीं कहा भाई ऐसा करो आप, ये सब सब कन्वेंशंस हैं. सो इफ आई टेक एनी रैंडम पॉइंट हियर, सो लेट्स से आई टेक दिस पॉइंट हियर, दिस पॉइंट. सो दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बताइए जी. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू काउंट x 1 2 3 4 एंड देन y 1 2. So the coordinate of this is 4, 2. If you understand, give me a thumbs up because इस पर इससे ज्यादा टाइम मैं नहीं लगा पाऊंगा यार. Right. Again, simply now let's take another point here. So let's say I take this point, maybe this point. So this point is you go on the negative side x. So 1 2 3 4. So negative 4 and positive 3y. So negative 4, I'll write it here. So negative 4 comma positive 3. So this is how you specify the coordinates of a point, x and then y. है ना, ये सिंपल है बट करना जरूरी है, इसलिए मैं कर रहा हूं, बिकॉज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस देन यू कैन नॉट प्रोसीड. सो दीज आर द बेसिक्स, दैट्स इट. नाउ मूविंग फर्दर, डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला एक कॉमन सेंस तरीके से करेंगे. अगर आपको रट्टा मारना है तो आपके सामने बुक है. मैं आज बुक लाया ना, भूल गया, वैसे मैं बुक लाके यूज कर लेता हूँ. बुक नीचे के फ्लोर पे है. सो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपको रट्टा मारना है, यू कैन डेफिनेटली रेफर टू योर बुक, है ना. अगर आपको समझना है बेसिक कॉमन सेंस से, दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू टीच यू. अगर आपको रट्टा मारना है, मैं फिर से कह रहा हूं, आप गलत क्लास में आ गए हो. आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू मेमोराइज एनी ऑफ द थिंग्स हियर. अगर आपको समझना है, समझाने के लिए मैं तैयार हूं यहाँ पर, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट डिराइविंग द डिस्टेंस फॉर्मूला. डिराइविंग, ब्रैकेट्स लगाने चाहिए प्रियांशु, बिल्कुल आपने ठीक बोला, लगाने चाहिए. कई बार मैं आलस कर जाता हूँ. So you put the brackets here, yeah, definitely, है ना. So now moving further, uh, what is distance formula? Distance formula means दो points के बीच का distance मुझे पता करना है, तो वो कैसे मैं पता करूं, है ना. So now let's say there is a point here. So let's say there is coordinate axis. पहले तो एक coordinate axis बना ली मैंने कि this is this and this, है ना. So this is the first quadrant, by the way. This is first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. So you go anti-clockwise or anti-clockwise depending on what pronunciation you use. So first coordinate, second, third and fourth. So let's talk about first coordinate. Let's say there is a point here, and let's say this point ka coordinate, this point ka coordinate is x comma y, or x1 y1. Let's call this x1 y1, है ना. x1 y1 का क्या मतलब हुआ? x1 y1 का मतलब हुआ सिंपल सा कि यहां से यहां तक जो है, ये जो हाइट है ये y1 है, isn't it? That's what it means. ये हाइट y1 है और ये जो है ये x1 है. यहां तक क्लियर है? तो हाँ ना कुछ बोल दीजिए भाई. x1 y1 का मतलब है this is x1 because you go x1 here and then y1 here. Now let's take another point here. So let's take another point here, and this point is somewhere here, let's say. And at this point. Now let's say the coordinate of this point is x2 y2. x2 y2. अब x2 y2 का क्या मतलब है? x2 y2 का मतलब है ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज x2. और उसका मतलब ये भी है कि ये जो डिस्टेंस है ये है y2. यहां तक क्लियर है सबको? x1 x2 y1 y2. I want to non-memorize, definitely बेटा, that's what we are here for. Yes, शिवम गुप्ता ने एक लाइन में एक वर्ड में बोल दिया कि distance formula is nothing more than the Pythagoras theorem. अब हम इसके बीच का डिस्टेंस ढूंढना चाह रहे हैं दोनों पॉइंट्स के, तो let's draw a line between those two points. So if I draw a line between those two points, that line looks like this. अब इस हरी लाइन का, हरी रेखा का की लंबाई जाननी है. So very simple, like Shivam is saying, definitely Shivam, I love you बच्चे. So basically, if you know Pythagoras theorem, that green line is this white line and this red line का Pythagoras theorem. So this white line and red line. But how big is the white line? See, यहां से यहां तक तो x2 था, यहां से यहां तक x1 है. ये तो कॉमन सेंस है यार.
कि यहां से यहां तक x2 है, यहां से यहां तक x1 है, तो ये जो बचा वो x2 माइनस x1 बचा। ये जो बचा दिस इज x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, राइट, क्योंकि यहां से आता x1 था और यहां से आता x2 था, तो ये जो बीच का है x2 माइनस x1। एंड सेम गोज फॉर दिस मरून लाइन, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो y2 है और यहां से यहां तक y1 है, क्योंकि देखिए ना y1 है, ये y1 है, तो ये y2 है, ये y1 है, तो मेरून लाइन इज y2 minus y1. So I will remove this here so that there is no confusion. So what we are talking about, this maroon line is simply y2 minus y1. बस हो गया, बल्ले बल्ले हो गया। तो अब ये जो ग्रीन डिस्टेंस है दैट स्क्वायर्ड इज इक्वल टू दिस स्क्वायर्ड प्लस दिस स्क्वायर्ड। सो द ग्रीन का डिस्टेंस जो है, लेट्स कॉल दैट डिस्टेंस d, that distance d between the 2 points is equal to square root of x2 minus x1 squared plus y2 minus y1 ka square. Now when we go for section formula, we are going to derive the section formula like this. बुक में आपके ब्ला 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 करके दिया, हमें फर्क नहीं पड़ता, we are going to derive like this. So now seeing this, I feel like I'm doing maths of class 7th. That is too easy to understand. Definitely, beta, if you are going by common sense, things are easy. Now let's proceed and do some questions. So example 4 says find a relation between x and y. And again, one more thing, my dear students, when you're doing coordinate geometry is all about this visualization. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है, उसका सोल्यूशन जब आ जाता है, तो आप उसको बेसिकली उसको विजुअलाइज करने के लिए ड्रॉ करोगे। अभी आगे के जो मैं क्वेश्चंस करूंगा, मैं दिखाऊंगा आपको कि क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, लेकिन आप रुकोगे नहीं, क्योंकि आप ओलंपियाड लेवल के बच्चे हो। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो वहां रुक जाएंगे और डांस करेंगे, यार आंसर आ गया, आप नहीं रुकोगे, आप थमोगे नहीं, आप बोलोगे यार आ तो गया, but let me analyze more because you're curious minded. Now this is find a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the points 7, 1 and 3, 5. Very, very good question. Very, very easy question. It's coming direct from your NCRT book, example number 4. So find a relation between x and y such that the points x, y is equidistant. First of all, you visualize this here. You don't start doing the question. Question तो आप कर लोगे, मेरे को पता है, पर मैं आप चाहता हूं आप एक आदत डालो कि विजुअलाइज करना है। एक पॉइंट दिया 7, 1, 7, 1 कहां पर होगा? थोड़ा सा इसको शिफ्ट अगर मैं कर दूं इस लाइन को तो बेटर होगा। हाँ, कुछ ऐसा है ना। सो 7, 1 मतलब 7 यूनिट्स यहां जाओगे, 1 यहां जाओगे, तो बेसिकली समथिंग लाइक दिस विल बी योर 7, 1. आई एम नॉट पुटिंग ब्रैकेट्स हियर जस्ट सो दैट इट्स क्लियर, बिकॉज यहाँ पर ना ब्रैकेट्स में क्लटर हो जाता है, दैट्स ऑल. Second point is 3, 5. So you go 3 units here, 5 units here. So something like 3, 5. So this is what you have. Now they're saying find a relation between x and y such that the point xy is equidistant from these 2 points. अब बच्चा बच्चा जानता है यार, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर कुछ चाहिए तो बीचों बीच एक पॉइंट ले सकते हो ना। सबसे पहले तो एक पॉइंट तो वो हो जाएगा, है ना। आपने इनके बीचों बीच एक ले लिया, कहते हैं और बताओ, और दिखाओ, है ना, जैसे कपड़े खरीदने गए, और दिखाओ, लाल दिखा दिया, और दिखाओ, नीला दिखा देता है। तो अगर मैं ऐसा कुछ यहाँ पे पॉइंट लूंगा तो इसका भी डिस्टेंस इसके बराबर ही तो होगा। अगर मैं और दिखाओ, भाई इसका भी होगा, और ऐसे उधर भी होगा। आप ध्यान से देखो, अगर ये डिस्टेंस लोगे ये इसके बराबर होगा। सो इट्स नॉट वन पॉइंट, इट्स अनेक पॉइंट्स। इसका आंसर एक पॉइंट नहीं होगा, इसका आंसर अनेक पॉइंट्स होगा। 2√2 क्यों बोल रहे हो, इसका कोई आंसर वैसे थोड़ी आएगा। फाइंड द रिलेशन पूछा है भाई, ध्यान से देखो, वही तो मैं आपको विजुअलाइज कराना चाह रहा हूं कि इसके जो आंसर्स होंगे अनेक आंसर होंगे। ये सारी जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। और अगर आपने थोड़ा जूनियर ग्रेड्स में पढ़ा है तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डॉटेड लाइन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा आरव, रुद्रांश? ये जो हमारे पॉइंट्स आए हैं ये इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएंगे। सर ब्लैक दिखा दीजिए, ब्लू नॉट विजिबल। चलिए जी, ब्लैक तो वैसे ही ब्लैक है,
तो है ना, तो चलिए वाइट बना देते हैं। ये कह रहा था मैं, है ना, ये सारे पॉइंट्स दोनों से इक्विडिस्टेंट पर है, इनफाइनाइट पॉइंट्स लाइक अनीता देवी से। तो क्या करूं, कैसे पता करूं? बेसिकली यू स्टार्ट बाय सेइंग ओके देयर इज सम पॉइंट x कॉमा y दैट आई वांट टू फाइंड आउट सच ए वे दैट वो इससे भी उतने दूर पर है, इससे भी उतने दूर पर है। तो आप क्या करोगे, एक्स वाई का डिस्टेंस निकालोगे इस पॉइंट से, और फिर इससे निकालोगे, दोनों को इक्वल कर दोगे, है ना। सो एक्स वाई का 3 5 से कितना डिस्टेंस होगा, एक्स वाई का 3 5 से डिस्टेंस होगा x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर, y-5 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये डिस्टेंस होगा एक्स वाई का उस पॉइंट से, और एक्स वाई का इस पॉइंट से कितना होगा, एक्स वाई का उस पॉइंट से होगा x-7 होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। बोलते हैं कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, बराबर कर देते हैं। बहुत बढ़िया, बस यही करना है हमने। अब इसको थोड़ा ब्यूटीफाई करना है। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट है, स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर करके ब्रैकेट्स ओपन कर लेता हूँ। सो व्हाट आई विल गेट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई गेट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, वही चीज कर रहा हूँ मैं, कुछ है ना, सुपर रॉकेट साइंस नहीं कर रहा। माइनस 10y प्लस 25, ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया मेरे पास, is equal to going to be x square. So there is less room here. It's x square minus 14x plus 49 plus y square minus 2y plus 1. And then you solve this. Yeah, this if I start solving all this, है ना? So स्वप्निल बेटा क्या नहीं समझ में आया इसमें? उन्होंने बोला भाई x और y का रिलेशन निकालो, किसी पॉइंट का पता करो जो इससे जितने दूर है उतना ही दूर इससे है। तो मैंने कहा भाई एक पॉइंट ले लिया एक्स वाई, और बोल रहे इससे 3 5 से कितना डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस इससे होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एक्स वाई का डिस्टेंस 3 5 से कितना हो जाएगा, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट। राइट साइड में इसका डिस्टेंस निकाल दिया, और फिर तो आपका चौथी पांचवी का गणित आ गया ये, जहां पर आप ये एक्स स्क्वायर इसको काट दोगे, वाई स्क्वायर इसको काट दोगे, एंड देन यू, है ना, डू ऑल दैट। सो लेट्स प्रोसीड फ्रॉम हियर। सोल्यूशन पार्ट आप कर लोगे, है ना? कोई और ट्रिक भी है भाई, है ना? प्रियांशु कह रहा है, बताओ भाई प्रियांशु। आरव कह रहा है इसका आंसर फाइनल आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 विच इज द इक्वेशन ऑफ अ लीनियर, है ना, दिस इज द लीनियर इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन आ गई। सो y इज इक्वल टू x-2। सो बेसिकली, है ना, ये कुछ ऐसी लाइन होगी कि यहाँ पर -2 पर इंटरसेप्ट करेगी और उसका स्लोप 1 होगा, है ना। स्वप्निल सिंगला क्लास 6, क्या बात, क्या जोश है भाई 6 में। बहुत बढ़िया बच्चे, लव यू। सो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 7, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस इससे भी उतना है जितना इससे है। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक बारी, है ना, विजुअलाइज करते हैं भाई चाहते क्या हो आप। एक तो मेरे पास है, देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका बनाऊं 2-5, सो 2-5, यहां पर कोई पॉइंट होगा 2-5, और एक होगा -2 9, सो -2 9, सो -2 9, सो -2, 9। तो बोल रहे, फिर वही बात होगी कि भाई बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो इनसे डिस्टेंस पर है, लेकिन उनमें से एक पॉइंट ऐसा होगा जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा होगा, वो वाला मेरे को पॉइंट चाहिए। अब ध्यान से देखिए, सो ट्रिक इज नॉट टू रिवील, ठीक है प्रिया प्रियांशु, लव यू बच्चे। सो इससे इससे दूरी पर ये बड़ी सी लाइन है, हर पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, बट कह रहे हैं अब नहीं, अब मैं और सिंपल कर देता हूँ। क्वेश्चन कहता है एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है वो पता करना है ना, ये हमारा गोल है। तो विद दैट गोल इन माइंड लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई कोई मेरा एक पॉइंट ऐसा है जो एक्स एक्सिस पर है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो कहना इसे उसका कोऑर्डिनेट होगा x,0। कैन आई से समथिंग लाइक x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को पता उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना। स्वप्निल सिंगला 6th में था, अभी 10th में आ गया, उसका लॉगिन नेम 6th है, ठीक है। लव यू बच्चे। सो डू यू ऑल अंडरस्टैंड, स्वप्निल इंक्लूडेड, कि भाई एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस विल हैव
कोऑर्डिनेट एज x कॉमा 0, क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना यार। इसका इससे डिस्टेंस बराबर करना है, ठीक है, कर देते। तो व्हाट वी विल राइट इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर y माइनस 5 है ना। सो दिस इज 0 माइनस 5, 0 माइनस माइनस 5 is 5, 5 का स्क्वायर, so this becomes 25। तो लिखने की जरूरत नहीं, 0 and all that, है ना। Similarly, so this square root is equal to इसका डिस्टेंस, so x minus minus 2, so that becomes x plus 2, that becomes x plus 2 का होल स्क्वायर, x plus 2 का होल स्क्वायर, 0 minus 9 का होल स्क्वायर मतलब प्लस 81, और इसका भी स्क्वायर रूट। तो ये मेरे को दिया भाई इक्वल डिस्टेंस पे, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट है, आई कैन जस्ट वाइप इट आउट, आई कैन से ओके लेट मी स्क्वायर बोथ साइड्स, कर देते हैं स्क्वायर। तो क्या बचेगा, और फिर इसका खोला इस ब्रैकेट को, तो मिला एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसमें से एक्स स्क्वायर बोथ साइड्स कट गया, 4 भी दोनों साइड कट गया यार, ये बढ़िया, 4 भी कट गया। अब ये 4 इधर आके माइनस 8x बना देगा, है ना, 4x इधर आएगा तो माइनस 8x हो गया, इज इक्वल टू 25 उधर जाएगा तो 56 बना देगा। तो x इज कमिंग आउट टू बी -7, -7। सो उसका जो कोऑर्डिनेट था, कोऑर्डिनेट इज -7, 0। देखिए क्लियर है यहाँ पे, -7, 0। तो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, आप यहाँ पर रुक जाओ, नहीं 7 नहीं, -7 भाई, -7। कि मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या भाई, किया तो बता दीजिए, मेरा तो नेगेटिव आ रहा है, कुछ गलत कर गए क्या, -7, ठीक है ठीक है ना। तो अब अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, आपको वाह वाह आंसर आ गया फुल मार्क्स, पर आप रुकोगे नहीं, थमोगे नहीं, इफ यू आर ओलंपियाड स्टूडेंट, है ना। आप क्या करोगे, इसको एनालाइज करोगे, एनालाइज करते हैं इसको। सो 2 -5, सो 2 -5 और -2 9 ऐसे जाना है। सो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले बना लेते हैं इधर। सो -5 नीचे आएगा, 9 ऊपर जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ कहीं बना लेता हूँ इस एक्सिस को। सो दिस इज माय एक्स एक्सिस, है ना। और वाई एक्सिस कहीं कुछ ऐसे बना दी मैंने, नहीं यहाँ नहीं बनाता, क्योंकि -7 कहते हैं ना वो, -7 0, तो थोड़ा इधर बना देता हूँ, थोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ यहाँ बना देता हूँ, है ना, ये बना देता हूँ, ये ठीक लग रहा है ना। अब इसमें देखते हैं 2 -5, सो 2 -5, सो वेयर इज 2 -5, सो 2 1 2 3 4 5, so this is my 2 -5, so this is 2 -5, so this is 2 -5, ये मेरा पहला पॉइंट है, 2 -5, और -2 9, सो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो ये मेरा दूसरा पॉइंट है। देखिए यहां तक क्लियर है सबको, है ना। तो ये दोनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर जब हमने सॉल्व किया, तो कौन सा पॉइंट आया, 1 2 3 4 5 6 7, ये -7, ये वाला पॉइंट आया मेरा। तो इज इट रियली इक्वी डिस्टेंट, है ना, एक बार देख लेते हैं ना क्या हो क्या रहा है। इस डिस्टेंस को आप देखिए, ये जो डिस्टेंस है 1 2 3 4 5, है ना। आप देखो, ध्यान से देखो, मैं आपको बहुत इजी करके बताऊंगा कि आपने क्या करा। आप 5 यूनिट से जरा आया, देखो 1 2 3 4 5, 5 यूनिट से इधर आए हो, फिर ऊपर कितना गए हो आप, 9 यूनिट्स गए हो। देखिए 9 यूनिट्स ऊपर गए हो, मतलब 5 इधर गए हो, 9 ऊपर गए हो, है ना, यहां तक क्लियर है ना। अब यहां से वहां जाने के लिए आपने क्या करा, यहां से वहां जाने के लिए आपने ग्रीन रास्ता लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 आप इस डायरेक्शन में गए, और फिर 1 2 3 4 5 5 आप नीचे आए हो, तो वुडंट द डिस्टेंस बी सेम नाउ, है ना। उसके लिए आप 5 और 9 जा रहे हो, तो जितना डिस्टेंस आएगा उसके लिए 9 और 5 गए हो, डिस्टेंस तो उतने आ गए। इस तरह से आपको क्या मिलेगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। All I'm saying is when you're starting your coordinate geometry analysis, you start this way. I'm not saying एग्जाम में ये करते बैठो, इतना टाइम थोड़ी होगा। बट जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को विजुअलाइज करना चाहते हो ना, कि भाई मैं
इसमें ना खो जाऊं इक्वेशंस में। इक्वेशंस तो यार इक्वेशंस है, ये मेरे को दिखा थोड़ी रही है कुछ, मेरे को दिख नहीं रहा है इसमें कुछ। जब मुझे दिखेगा मुझे समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो क्या रहा है ना। सो दिस इज हाउ यू शुड बी सॉल्विंग। एक और क्वेश्चन में हम इस तरह से एनालाइज करेंगे, सब में नहीं करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन हियर। इसको भी थोड़ा सा पहले एनालाइज करना शुरू करते हैं कि हो क्या रहा है भाई यहाँ पे। सो 2 -3 और 10y। अच्छा जी, सो 2 -3, ये कलर थोड़ा ठीक नहीं लगा मुझे। सो बेसिकली मेरे पास क्या है, 2 -3। सो यहाँ पर एक पॉइंट होगा 2 -3, है ना, क्योंकि 2 यूनिट्स इधर क्या नीचे -3। और 10y मतलब कह रहे हैं 10 यहां पर जाओ, दिस इज माय 10 यूनिट्स। और y का कोऑर्डिनेट बताया नहीं। तो मुझे अभी थोड़ा सा चमक रहा है यहाँ पे कि हो सकता है यहां पर कोई पॉइंट हो 10 यूनिट्स में। x कोऑर्डिनेट 10 दिया ना उन्होंने, y तो दिया नहीं है। पर यार मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी तो एक पॉइंट आना चाहिए ऐसा, क्योंकि उन्होंने 10 कोऑर्डिनेट x का दिया है, y के बारे में नहीं बताया। तो y के यहाँ दो आंसर आने चाहिए, टोटल दो आंसर आएंगे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, अगर आपको रियली में यू रियली वांट टू अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री व्हिच इज पार्ट ऑफ lot of things that you will do. So coordinate geometry is not a chapter here. It is basically something that you're going to use it. You're going to apply it. जब आप इंजीनियरिंग करोगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज। यू आर गोइंग टू मेक, है ना, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, साइड व्यू, 40 डिग्रीज व्यू, 38.9 डिग्रीज व्यू, वो सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है। तो इफ यू रियली जस्ट वांट टू appreciate and understand deeply, you really have to make this। अगर आप इसको इस तरह से बनाओगे, विजुअलाइज करोगे, तभी आपको समझ में आएगा। करने को तो इक्वेशन से कोई भी कर लेता है। तो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अब मेरे को ये समझ में आ गया, मैं जो मर्जी करूं मेरे दो आंसर आने चाहिए। करते हैं। तो ये पॉइंट का ये डिस्टेंस जो होना है ये 10 होना चाहिए। डिस्टेंस 10 होना चाहिए, मतलब क्या होगा, 10 - 2। देखिए 10 - 2, 10 - 2 कितना होता है, 8। सो दैट इज 8 का स्क्वायर। Then y -3, y minus -3 is y plus 4. So plus y plus 4 plus y plus 4 का whole square. And square root of this is 10. Square root of this is 10 मतलब क्या, इसको स्क्वायर बोथ साइड कर दूंगा तो ये आ जाना चाहिए 100। मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया ना, सिंपल लाइफ हो जाएगी मेरी, है ना। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 64। एंड देन यू गेट प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16y, है ना, प्लस 16y। अनलेस आई हैव मेड अ मिस्टेक हियर, y प्लस 4 कैसे, y प्लस 3 था भाई, y प्लस 4 क्यों कर दिया मैंने, y प्लस 3 है ना, मेरी मिस्टेक हो गई, y माइनस माइनस 3, है ना। तो 64 ठीक है, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 100, है ना। यहां तक तो क्लियर सबको। अब ये 64 उधर जाएगा, 36 बनेगा, 36 वापस आएगा, तो 9 minus 36 is -27। So what I'm getting now is y square plus 6y minus 30, नहीं, minus 27 is equal to 0। Now you can split the middle term, आंसर दिख रहा है अभी, है ना। तो this is y square plus 9y minus 6y, no sorry, minus 3y, my mistake, minus 3y minus 27 is equal to 0। So you get y plus 9 and then you get y minus 3 is equal to 0। तो ये चीज पहले भी करेंगे, ये डिब्बा टाइम्स ये डिब्बा is 0। So one of this डब्बा has to be 0। So if this डब्बा is 0 then y is equal to 9। And if this डब्बा is 0, y is equal to minus 9। And if this डब्बा is 0, y is equal to 3। तो आपके दो आंसर आ गए। देखिए ये तो y3 आ गया, मतलब एक कोऑर्डिनेट आपका आ गया 3, 10, नहीं 10, 3, because we are going for x coordinate being 10। So this answer is 10, 3। So this is one of your answers, 10, 3। नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों कर रहा हूँ आज, है ना, 10 क्यों लिख रहा हूँ वहां पे। हाँ ठीक तो है, ठीक तो है। दिस इज 10, नो नो 10। आपने क्यों लिखा नहीं, अच्छा वो आपने वो, अच्छा रंजीत को आपने वो आंसर दिया, ठीक है ठीक है। सो 10, 3। सो वेयर 10 इज एक्चुअली द
है ना, x coordinate 3 is this and the other one is 10 comma negative 9, 10 comma negative 9. So ये दो आपके आंसर आ गए. But now we will see, does it really make sense? है ना? So let's go and try to analyze, do these answers really make sense? So we'll start and plot it here. So let's plot them here. So let's plot them and we'll say, okay, what if this is my coordinate axis? अब नंबर क्या थे वहां पे? एक तो 10 तक जाना है, ऊपर 3, नीचे -9. तो फिर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ. अब यहाँ पे मेरा जो ओरिजिनल पॉइंट था वो था 2 कॉमा -3. So I'll draw the point here, 2 comma -3, 2 -3. This is my point to start with. यहां से डिस्टेंस चाहिए. So एक आया था 10, है ना, एक क्या आया था मेरा, मेरी मेमोरी देखिए कितनी कमजोर है. 10 3 10 -3. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3. So this is one of the points. Then the other point is how much? Other point is 10 -9. So you go 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this is your other point, है ना? So I'll make sure 1 2 3 4 5 6 7 8 9. बिल्कुल बढ़िया, है ना? अब आप देखिए, अगर आपको इस पॉइंट से यहां तक जाना है तो पहले तो आप ये गए 1 2. So how many units? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 यूनिट्स आप इधर गए हो, 8 यूनिट्स. और ऊपर कितने गए हो? 1 2 3 4 5 6. So 6 ऊपर गए हो, तो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम से आपका डिस्टेंस 10 आ गया, है ना? Now similarly, if I try to find, I navigate here. So what I'm doing now is the same thing. You're going 8 units here and then 6 units down. So isn't the answer same? 10 units here, 10 units here. This is how you visualize this. Clear है? Clear? Yeah, Priyanshu Naik, definitely bache. But here, what we are doing here, the purpose of this class is accelerated maths, as in we are just trying to finish off the syllabus for 10th grade, है ना, NCERT, CBSE को खत्म करना है जिससे कि हम हायर लेवल पढ़ सके. That is the one purpose, one and only purpose here. ठीक है? So हमारा जो purpose है वो simply इसको finish करना है syllabus को. There's nothing more that we are doing here. And obviously shortcuts and all we'll do when the time comes closer. Yeah. So now let's proceed further. Now, whenever you're studying something, there are two ways to do that. Either you go simple route, है ना, या फिर आप ये जलेबी वाला है ना, नूडल वाला रास्ता लो. तो ऑब्वियसली कई बार ये रास्ता दिखाते हैं कई लोग, है ना, शो ऑफ करने के लिए कि भाई आई एम टीचिंग यू रॉकेट साइंस, अगर आप मेरी क्लास में नहीं आते हैं तो ये डेरिवेशन आपसे नहीं बनने वाला था. आपने अच्छा किया मेरी क्लास में आ गया, आपकी आपकी तो लॉटरी लग गई, आपको मैं मिल गया, है ना? ऐसा होता है ना भाई, लॉटरी लग गई, आपको मैं मिल गया, अगर मैं नहीं होता तो आप तो बस बर्बाद थी आपकी जिंदगी, है ना? तो दिस इज व्हाट मेनी मेनी ऑफ द टीचर्स विल टेल यू. बट आई वुड ऑलवेज से कि भाई इस रास्ते से जाओ. अब चाहे आपको लगे यार ये क्या 2 लाइन का डेरिवेशन था, है ना, बट द होल पॉइंट इज आई विल ऑलवेज गिव यू द राइट वे टू लर्न, है ना? तो पहले मैं ये वाला रास्ता दिखाता हूँ क्या होता है जो आपकी बुक में दिया हुआ है. तो रट्टा वाला मेथड, सेक्शन फॉर्मूला का रट्टा वाला मेथड, है ना? रट्टा वाला ये तो होगा ना भाई, आपको 15 स्टेप दे देंगे, याद कर लेना इसको. रट्टा वाला मेथड स्टार्ट्स, पहले तो बुक में डायग्राम बना हुआ है ना? फिर ये ओ माय गॉड, आपको ये याद करना है यहाँ पे x over 36 minus x and all this, है ना? So then you do this x minus, then you do this, and then this is how you prove this. But let's use common sense. If you want to use common sense and learn it in 3 or 4 steps, give me a thumbs up right now. I'm going to show you how section formula can be done by common sense. Common sense. आपको कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है. चलिए करते हैं कॉमन सेंस वाला मेथड. अभी जो था ये रट्टा वाला मेथड था, अभी कॉमन सेंस वाला. तो कॉमन सेंस वाला मेथड गोज समथिंग लाइक दिस. मेरे पास एक पॉइंट है और ये पॉइंट है x1 y1. x1 y1 एक पॉइंट है. फिर मेरे पास एक और पॉइंट है and that is x2 y2, x2 y2.
अब मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि डिवाइड कर दूं इसको, ये जो लाइन है इन दोनों को जोड़ने वाली, इसके मैं टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूं, मैं तोड़ना चाहता हूं। क्यों करना चाहता हूं? यू विल सी लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ दैट। मैं इसको तोड़ना चाहता हूं। किस तरह तोड़ना चाहता हूं? 2:3 में तोड़ सकता हूं, 1:1 में तोड़ सकता हूं भाई, 50-50। 1:5 में तोड़ सकता हूं, 3.98 पॉइंट है ना, 3.98 एंड 2.95 में तोड़ना चाहता हूं, मेरी मर्जी, जैसे मर्जी, है ना। So let's say we'll generalize that and say I want to break it into two parts such that this is M1 and this is M2। मतलब पहला पार्ट M1 है, दूसरा पार्ट M2। M1 क्या है? कोई नंबर होगा, 1 होगा, वो 4 होगा, ये 4 होगा, वो 1 होगा। तो M1 एक नंबर है, इट मे बी डेसिमल ऑल्सो, इट कैन बी 1.1 and 2.93562980 something, I don't know, some numbers M1 M2। मेरे को तोड़ना है, और मेरा जो गोल है लाइफ का, पूरी लाइफ का जो मेरा इस समय गोल रह गया है, वो ये है कि अगर मेरे को इसको तोड़ना था M1 M2 पार्ट्स में, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, मतलब मेरा मेरा जो लाइफ का पूरा गोल है इस समय, वो है x, y पता करना। एंड दैट इज व्हाट सेक्शन फॉर्मूला इज ऑल अबाउट। सेक्शन फॉर्मूला इज अबाउट finding the coordinate of a point such that that point breaks this line into M1 is to M2। यहां तक समझ में आ गया कि गोल क्या है हमारे लाइफ का, है? तो सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है इसमें यार, इतना सिंपल चीज को डिफिकल्ट बना देते हैं। अब देखो इसमें, अब आपको क्या बताऊं, ये क्या आपको, ये देखो, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना। मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग बनाया, वाई एक्सिस के लॉन्ग बना दिया, कुछ भी नहीं किया। सिमिलरली मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये लाइंस बनाई है, कुछ नहीं करा मैंने, मैंने ये लाइन बनाई। अब आप इस ट्राइंगल में देखो, और ये ट्राइंगल में देखो, यहां पे आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। देखिए मैं उसको शेड करता हूं, ये ग्रीन वाला ट्राइंगल और ये ब्लू वाला ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं। आरंट दे सिंपल सिमिलर, है ना? आरंट दे सिमिलर? क्यों सिमिलर है? ये 90 डिग्रीज है, ये भी 90 डिग्रीज है, ये दोनों एंगल 90 डिग्रीज है ना, परपेंडिकुलर है। सिमिलरली भाई, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, क्यों है? क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो आपस में पैरेलल है। तो इजंट दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल? क्या बोलते हैं इसको, ऑल्टरनेट, या जो भी, मेरी मेमोरी बहुत कमजोर है, कॉरस्पॉन्डिंग, जो भी बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में भी। I'm very good with deriving the things. I'm very good with explaining things, but very, very poor with memorizing it. So I don't know. को क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, BPT। नहीं, BPT थोड़ी है ये। So this is basically, if there are two lines here, so this angle is equal to this angle. Aren't these alternate angles? So that's exactly what we are saying now. If these angles are equal, these angles are equal. So these two triangles, which I've shaded as blue and green, they are similar triangles, है ना? Corresponding बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उनका नाम है, जो भी है, रामू शामू, है ना, कुछ भी है। So this green and this blue, they are similar triangles. If they are similar triangles, as we did it in class day before yesterday, if these are similar, the corresponding sides are equal, are in the same ratio, sorry, they're in same ratio. So if this is M1 over M2 का ratio, then इन दोनों का ratio भी M1 M2 होना चाहिए ना, इसका और इसका, है कि नहीं? सो मेरा मतलब ये है कि अगर मैं देखूं, ये चीज डिवाइडेड बाय ये चीज हैज टू बी M1 by M2, एंड सिमिलरली दिस डिवाइडेड बाय दिस हैज टू बी M1 by M2, है ना? तो अब बस हो गया, आपका हो गया डेरिवेशन। तो अगर मैं बोलूं कि this by this is M1 by M2, but how much is this? This is basically x minus x1, this is x minus x1, क्योंकि ओरिजिन से ये x डिस्टेंस पर है और ये x1 डिस्टेंस पर है, so this is x minus x1। Similarly this one is x2 minus x1। So if I say x minus x1 divided by x2 minus x, है ना, ये दिस लाइन इज x2 minus x,
this has to be equal to m1 by m2. This one has to be m1 by m2. नहीं, मैं नामकरण जानबूझकर नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू नामकरण करते हैं ना, उसी में खो जाते हैं बच्चे, पी क्यू आर एस टी वट एवर. आई वॉन्ट यू टू विजुअलाइज. नामकरण आप करोगे, नामकरण के बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे. लाइक आई ऑलवेज से, मैं आपको दाल उबाल कर दे रहा हूं, तड़का आपने लगाना है. इस मेथड से आप डिराइव कर लोगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. उसमें स्टेप्स आपने लिखने हैं, नाम लिखना है, सेंटेंसेस लिखने हैं. मैं 3-4 लाइन की बॉइल्ड दाल आपको दे रहा हूं. So I'm saying this, if this is m1 by m2, then this is also m1 by m2. So this one is x1 x minus x1 and this is x2 minus x. So इसका ये जो है ना, ये कंफ्यूज कर सकता है जो कॉमा लगा है ना. Yeah. So now if you cross multiply, what you get here is m2x minus m2x1 is equal to m1x2 minus m1x. No, this is so simple. You bring things, like things together. So this one is m1x. You bring it with this because your goal is to find x. Why am I doing it? Why am I doing it? Because I want to find x. तो ये सारा एक साथ ले आता हूं. तो अगर मैं इसको उठा के यहां ले आता हूं, I end up getting m1 plus m2 कॉमन आ जाएगा. m1 plus m2 x is equal to m1 x2 plus m2 x1 plus m2 x1. तो फिर आपका जो x कोऑर्डिनेट आ गया, वो आ गया m1 x2 plus m2 x1 over m1 plus m2. That is all. And if you have studied physics, सेंटर ऑफ मास की जब आप बात करोगे, उसी तरह से सिमिलर कॉन्सेप्ट आ रहा है. जितना भारी ये है, उतना भारी उस तरह से. If you try to visualize. If you want to study slope and its different forms, Arjun Bhandari, you should look for a video made by me. It's called Differential Calculus with a Cane. एक छड़ी की मदद से मैंने सिखाया है, because differential calculus is all about slopes. So उसमें आप slopes देखोगे, है ना? So go for that video. Look for Bhavdeep sir, calculus with a cane. Thank you, Rudransh, for clarifying. So to see the pattern here, m1x2. मतलब m1 को उससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और फिर डिवाइडेड बाय द होल ऑफ द मास. थिंक अबाउट दैट वे. So if I take an example, so let's say this point was 2,4 and this point was 5,6, and you want to divide it into the ratio of 3 is to something. I don't know. I don't want to take the common numbers here. So maybe 1 is to 1 is to 1 is to 3. Then what you will do is 1 times 4. So see the pattern. 1 times 4. Oh, sorry, 1 times 5. So 1 times 5 plus 3 times 2. So मैंने इस वाले को इसके x से मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया. So 3 times 2. See the pattern. 1 times 5 plus 3 times 2 divided by ये 1 plus 3. That's it. ये इसका x कोऑर्डिनेट है. मैं कैलकुलेट नहीं करना चाह रहा, मैं आपको फोकस करना चाह रहा हूं कि भाई किस तरह से करना है. पैटर्न देखिए. और y कोऑर्डिनेट करना, तो ये 1 टाइम्स वो वाला y कोऑर्डिनेट 1 times 6 plus 3 times 4. 3 times 4. This is 3 times 4. And then divided by 1 plus 3. This is how you use the section formula. ठीक है? Differential calculus with a cane. Yes, Arjun Bhandari. And put my name also, Bhavdeep sir. That will be easier to find. It's on the same channel where you are right now. So find the coordinates. ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से लिखा हुआ. मैं इसको थोड़ा सा, है ना, इसका ओरिएंटेशन ठीक कर देता हूँ, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा ना तो साथ में अच्छे लगेंगे. अभी सुंदर नहीं लग रहे. हाँ, अभी सुंदर लगेंगे. चलिए. Now find the coordinates of a point that divides the join of this and this in the ratio of 2:3. So 2:3. तो क्या करोगे आप? अब देखो 2:3 में करना है. 2:3. So 2:3 में करना है, तो एक काम करते, बना लेते हैं इसको पहले, है ना? That way it's easier to, है ना, kind of visualize. So this is -1,7 -1,7 then 4. जहां भी है हम उसको अभी वो देख ही नहीं रहे कि कौन से क्वाड्रेंट में. हमने तो बस बना दिया उसको. क्वाड्रेंट से हमें नहीं मतलब.
सो -1 7 4 -3 और 2:3 में डिवाइड करना है, 2:3। तो हम क्या कर रहे हैं, 2:3 में डिवाइड करना है। तो अब देखिए x कोऑर्डिनेट पहले पता करना, तो 2 times 4, so I'll write everything so that you can clearly see 2 times 4. So what it did is 2 times 4 plus 3 times -1, so I'll write 3 times -1, 3 times -1 divided by 2 plus 3, and then you write comma, then you do the same thing for y, so 2 times -3, 2 times -3, 3 times 7, so plus 3 times 7 over 2 plus 3. See how easy it is. It's just a pattern. This 2 times ये x coordinate plus this times this x coordinate plus करना है, माइनस साइन का ध्यान रखना है साथ में. So 2 times 4 is 8, 8 minus 3 is 5. So this becomes 5 over 5. Comma. So this is minus 6 plus 21. So that is 15 over 5. So the answer is 1 comma 3. So your answer is, the coordinate of that point is 1 comma 3. That's all. इतना easy होता है ये. So let's proceed and do another question here. What time is it? I have to take another class at 6. So we'll have to really rush right now, my dear friends. Find the ratio in which the line segment joining the points -3 0 and 6 -8 is divided by this. तो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? तो सेम थिंग, you draw this -3, 10, and that's the first point, and the second point is 6, -8, 6, -8. So they are saying, okay, these are the 2 points, और इनके बीच में कोई पॉइंट है, and that is -1, 6. कह रहे हैं भाई रेशियो का पता लगाओ, कौन से रेशियो में. तो you can always say m1 is to m2, and you will find that it is a linear equation in m1 and m2. You can find it. But I would say k is to 1 मान लो यार, मान लो ये k है और ये 1 है, सपोज ऐसे मान सकते हो, इजी हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेशन. आप m1 m2 करोगे उससे भी हो जाएगा. बट इफ यू से k is to 1, क्योंकि देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर ये 2:3 था, तो मैं इसको ये भी तो कह सकता हूं 2:3 की जगह मैं कह सकता हूं ये 2/3:1 है. क्या फर्क पड़ता है यार, दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर दिया ना मैंने. डू यू ऑल एग्री विद दिस? अगर 2:3 कह रहा हूं उसकी जगह 2:2 है ना, तो ये 1 जो था ये 3/3 था ना, isn't it? 2:3 है तो 2/3 3/3 रेशियो हो गया, एक ही बात है ना. सो एक तो k:1 करोगे इजी लगेगा, दैट्स व्हाई. सो क्या कह रहे हैं भाई, कौन सा रेशियो है मुझे नहीं पता, तो k:1 है. सो आप बोलोगे k into 6 which is 6k, 6k plus 1 times 3 -3, so -3. देखिए 6k minus 3 divided by k plus 1, k plus 1 should be equal to this -1, -1, and just solve it. So you get 6k minus 3 is equal to minus k minus 1. Now this comes on this side, so this becomes 7k is equal to -3 गया 3 बना 2. So k is equal to 2/7. So the ratio is 2/7 is to 1, or you can also write this as 2:7. That is your answer. This is how you do these questions. And rest of it, try to take it as a homework. Question number 7, very, very easy. They are saying AB is the diameter. So they are saying this is A and this is B. This is A, this is B. और वो कह रहे हैं सेंटर दिया है, B दिया है 1,4, और सेंटर आपका दिया है, सेंटर इज 2, whose center is this, so 2 -3, और वो कह रहे हैं इसका पता लगाओ x y का. तो very easy, this ratio has to be 1:1 because it is the diameter. This is radius, this is radius. So you will say 1 times x plus 1 times 1. So let's do that very quickly. So 1 times x plus 1 times x plus 1 times 1, 1 times 1 divided by 1 plus 1 should be equal to 2, क्योंकि 1:1 के रेशियो में x y उसको करा तो ये आया, लेकिन वो तो 2 दिया है. So now this is x plus 1 is equal to 2 times 2 is 4. So x is equal to 3. So उसका x कोऑर्डिनेट आपका 3 आ गया. ऐसे आप y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए.
है ना? सो तालियां तो बनती है ना? बिकॉज यू हैव लर्न दिस विदाउट रट्टा इवन, है ना, इन वन क्लास, दैट्स ऑल इट टुक, 1 आवर में आपका पूरा चैप्टर हो गया. Now, beyond this, first of all, join this फटाफट से. You join this channel for more information, and in case you need to, more extra in-depth knowledge, you can always join our courses. And by the way, NSCP batch is ending. So module 2 is ending. So I'll just show you. Module 2 is ending. We are launching module 3 on 16th of May. और उसके साथ ही हम 3, 4, 5 इकट्ठे सेल करेंगे एट अ डिस्काउंटेड प्राइस. सो कम टू द चैनल. इंफॉर्मेशन विल बी आउट इन अ डे और टू. वी आर स्टिल प्लानिंग फॉर द प्राइसिंग एंड ऑल दैट. तो डेट्स, सबसे बड़ी बात तो डेट्स होती है. फेस्टिवल्स का ध्यान रखना है, फिर टेस्ट के डेट्स का ध्यान रखना है. सो लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू गो बिहाइंड द सीन्स बिफोर वी प्लान दीज कोर्सेज. सो दैट प्लानिंग इज गोइंग ऑन राइट नाउ. आई हाईली एनकरेज यू टू ज्वाइन दिस इवन इफ यू हैव नॉट ज्वाइन दिस. बट यूट्यूब पर आते रहो यार. यूट्यूब पर आपको इस तरह से इतना प्यार बना रहेगा तो आई एम गोइंग टू ब्रिंग मोर एंड मोर वीडियोस. सो थैंक यू बच्चों, कीप अप द हाई जोश.